let's start with another set of numerical on electrochemistry, and this time it is the calculation of standard free energy and equilibrium constant from the standard EMF of the cell. Now इसमें एक mathematical expression है which we need to use, and that is decrease in free energy is equal to electrical work done by the cell, which is equal to n f E नॉट सेल. ना ये एक्सप्रेशन ड्राइव कैसे होता है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. सी you know that in an electrochemical cell, okay, electrical energy is produced, right? When a cell reaction takes place, electrical energy is produced. Now the electrical work done by the system results in the decrease in the Gibbs free energy of the system. ये हमने thermodynamics में पढ़ा है, right? So according to first law of thermodynamics, electrical work done is equal to decrease in free energy of the system. Decrease in free energy of the system. तो यहीं से ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा ड्राइव होगा. हाउ कम? अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं. जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, राइट, देन देयर इज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट. अगर जो हम बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ electrochemical cells की, here electrical work is done by the system and it leads to decrease in free energy of the system. Now in case of electrolysis, जो हम पढ़ेंगे, जो आपने अगर पढ़ी है तो थ्योरी में, electrical work is done on the system and it leads to increase in free energy of the system. तो वो भी आप पढ़ेंगे, बट मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. बट इसमें हमने ये यूज करना है बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सो इसमें हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल की डेल्टा जी जो है, इफ इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, देन दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम. वर्क इज डन बाय द सेल. यहाँ पे बात करें अगर हम बाय द सिस्टम, एंड बाय सिस्टम हेयर वी मीन सेल, राइट. हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? सेल की. ठीक है, तो राइट. अब बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है. नाउ यू नो दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन is equal to what? It is equal to quantity of electricity flowing, quantity of electricity flowing multiplied by what? Multiplied by EMF of the cell. Now you know that if 1 mole of electrons flow in a circuit, for a cell reaction there are 1 mole of electrons flowing, then quantity of electricity produced is given by 1 Faraday, which is equal to how much? Which is equal to 96500 coulombs. So if there are n moles of electrons flowing, electrons being transferred in a cell reaction, then how many Faradays of electricity will be produced? It will be equal to NF Faraday, right? This multiplied by EMF of the cell, right? So that now electrical work done हमने क्या बोला is equal to decrease in free energy of the system. So for an electrochemical cell, electrical work done is equal to decrease in free energy of the system, right? यानी कि free energy change of the system, अगर obviously ना delta G अगर negative आ रहा है, so that is equal to electrical work done. Therefore that means minus delta G is equal to NFE. And because we measure electrode potentials under standard conditions, so we can change this expression to what? We can change it to under standard condition minus delta G naught is equal to NF E naught cell, right? Cell का EMF.
तो यही एक्सप्रेशन हमने यूज करना है, या इसके अबव वाला अगर हम स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं. एंड वी विल बी कैलकुलेटिंग डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, राइट. एंड और हम इसमें से निकालेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल. अब यहां से ये पता करना है कि यहां से जो आपका है केसी कैसे आएगा. मैंने यहाँ पे एक लिखा था फर्स्ट उसमें, एंड केसी फ्रॉम दिस ई नॉट सेल, वो ऐसे आएगा. उसके लिए भी एक एक्सप्रेशन यूज होता है, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी. ये, और ये एक्सप्रेशन कहाँ से आता है? ये एक्सप्रेशन बहुत इजी है. हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम what happens is E naught cell is equal to RT upon NF log KC. ये हमने पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में. सो यहाँ से इसको इसके आई मीन एन जो E naught cell है इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करो. तो दिस इज माइनस NF इंटू RT अपॉन NF log KC. यहाँ से NF से NF कट गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी. नो, मैंने यहाँ पे आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. जस्ट अ सेकेंड. दिस इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303. हाँ, आई मिस समथिंग, आई मिस 2.303. यहाँ पे here E naught cell is equal to, just a second, I missed here, E naught cell is equal to 2.303 RT upon NF log KC होता है. मैंने यहाँ पे 2.303 मिस कर दिया. अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NF इंटू 2.303 RT अपॉन NF log KC. NF से NF कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log KC. सो ये एक्सप्रेशन भी हम यूज करेंगे जब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा. सो दीज टू एक्सप्रेशंस वी विल बी यूजिंग इन आवर कमिंग न्यूमेरिकल. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है फॉर द सेल this magnesium and silver क्या, calculate the equilibrium constant of the cell reaction at 25 degrees Celsius and maximum work that can be obtained by operating the cell. ये दोनों क्या दिए हुए हैं, Mg2 to Mg and silver ion to silver, ये दोनों हमें दिए हुए हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स. और हम एक बार सेल रिएक्शन लिख लेते हैं. क्या हो रहा है इसमें? इसमें मैग्नीशियम की हो रही है ऑक्सीडेशन एंड सिल्वर की हो रही है रिडक्शन. सो दिस इज इक्वल टू Mg2 प्लस 2Ag, राइट. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैक्सिमम वर्क डन, यानी कि हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है. बिकॉज डेल्टा जी नॉट डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस दिस इज इक्वल टू NF, ये होता है ना आपका NF E नॉट सेल. तो जो ये वैल्यू है दिस इज इक्वल टू वर्क डन, राइट. सो यहाँ से N की वैल्यू तो हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 2. F इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल. हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए इसमें अब E नॉट की वैल्यू. तो E नॉट सेल विल बी इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. 0.80 माइनस 2.37, दिस इज इक्वल टू 3.17 volts. तो यहाँ से डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल विच इज इक्वल टू 2 into 96500 into 3.17 which is equal to 611.81 किलो जूल पर मोल. अगर ये जूल्स में आएगा इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो किलो जूल पर मोल हो जाएगा. सो ये तो हो गया आपका, दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल. अब क्या निकालना है? अब निकालना है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.
सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लगाएंगे एक्सप्रेशन डेल्टा G naught is equal to minus this is equal to 2.303 RT log Kc. Now इसकी वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा जी नोट की इसकी है 611 पॉइंट, इसको अब हम यहाँ जाउल्स में यूज करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को हम जाउल्स में यूज करेंगे। सो ये आ जाएगा 611810 जाउल्स पर मोल। सो यहाँ पे जाउल्स में लेते हैं सिर्फ ये, दिस इज इक्वल टू 2.303, वो इसलिए लिया है बिकॉज बाकी सारी क्वांटिटीज जाउल में है। ये देखो आर की वैल्यू है 8.31, टी है 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 लॉग के सी। इस पूरे को सॉल्व कीजिए, लॉग के सी आ जाएगा आपका 107.28, के सी विल बी एंटी लॉग ऑफ 107.28 एंड ये एंटी लॉग लेके आएगा इक्वल टू 1.891 into 10 raised to power 107. So this is the value of Kc and this is the maximum work done by the system. Okay, next है for the reaction N2 gas plus 3 ammonia gives you ammonia, N2 gas plus hydrogen gas gives you ammonia at 298 Kelvin. Enthalpy and entropy changes are given, यानी कि delta H given है -92.4 kilojoules and delta S given है, entropy change given है -198.2 joule per Kelvin. Calculate the equilibrium constant for the reaction. So इसमें हम simply ये यूज करेंगे माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT log Kc। इसमें स्टैंडर्ड की बात है ही नहीं, लेकिन उसके लिए पहले हमें डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। Now delta G, you know from thermodynamics, delta G is equal to delta H minus T delta S। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें डेल्टा H जो है दैट इज इन किलो जॉल, जबकि डेल्टा S इज इन जाउल, तो इसको कन्वर्ट करिए 92.4 किलो जॉल इज इक्वल टू 92.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 जॉल्स। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 92.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 माइनस टी कितना है 298 इंटू डेल्टा एस कितना है -198.2 एंड ये वैल्यू आ जाएगी -3336.4 जाउल्स पर मोल। दिस इज दी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा -3336.4 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये वाला माइनस, दिस विल बिकम प्लस। सो दिस इज इक्वल टू 2.303, आर की वैल्यू क्या गिवन है 8.314, टेम्परेचर इज 298 लॉग के सी। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे लॉग के सी विल बी, इट विल बी इक्वल टू, ये आएगा 5.8453 अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर, एंड के सी विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5.8453। सो के सी की वैल्यू एंटी लॉग लेके आएगी, इट विल बी इक्वल टू 6.958 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5, और हमें यही मांगा था इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमने निकाल लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन, यानी कि डिक्रीजिंग गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, या कैन बी वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सेल है जिंक एंड निकल का, जिसमें जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन एंड निकल की हो रही है रिडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, आप सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालिए। दिस इज इक्वल टू जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और आपका दोनों के दिए क्या हुए हैं निकल आइन टू निकल एंड जिंक टू जिंक आइन टू जिंक। तो ये दोनों दिए हुए हैं हमें, दोनों के दोनों
जस्ट अ सेकेंड, यस, दोनों के दोनों हमें दिए हुए हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो ये देखिए जिंक आयन टू, सॉरी, जिंक आयन टू जिंक, निकल आयन टू निकल, सो ये बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से सेल का ईएमएफ निकालेंगे, वो क्या होगा, -0.25 माइनस -0.76, दिस इक्वल टू 0.51 वोल्ट्स, एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, या डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू NF E नॉट सेल, विच इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क that can be obtained from a cell. So n की वैल्यू इसमें 2 है, f होता है 96500, एंड हमारा EMF आया है स्टैंडर्ड 0.51, तो ये वैल्यू आ जाएगी 984 समथिंग आएगी, ये आएगी 30, यस, जूल्स, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगी 98.43 किलो जूल्स। सो दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम दी अबव सेल। अगेन नेक्स्ट भी सेम है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम दी सेल, एग्जैक्टली सिमिलर। सेल क्या है, जिंक कॉपर सेल है, जिंक की जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की जिसमें रिडक्शन हो रही है, बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल है। ये निकालिए, कॉपर की हो रही है रिडक्शन, तो 0.34 माइनस -0.76, दिस इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। बस यहां से डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -NF, एग्जैक्टली सिमिलर है जो मैंने पहले किया है। सो दिस इज इक्वल टू, नॉट माइनस, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 212300 जूल्स और 212.3 किलो जूल्स। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, राइट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द सेल रिएक्शन, हाउ इज इट रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑफ द रिएक्शन। ओके, इसमें अगर देखें तो एक Fe जो है 2+ है, ये चेंज हो रहा है Fe3+ में, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन के, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एंड हमारा जो सिल्वर आयन है वो वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो हमारे यहाँ इसका मतलब n की वैल्यू है 1। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड EMF, विच इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन, सो दिस इज इक्वल टू 0.03 वोल्ट्स। तो यहाँ से डिक्रीज इन फ्री एनर्जी जो कि हमें निकालना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 96500 इंटू 0.03, दिस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2895 joules. So this is this. So decrease in free energy क्या हो गया, डेल्टा जी नोट हो गया -2895 joules। चाहे तो इसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। अब हमें पूछा है हाउ इज इट रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, दैट वी वेरी वेल नो दैट माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। तो यहां से KC निकाल लीजिए, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये प्लस हो जाएंगे, माइनस 2895, और सॉरी दोनों जगह माइनस नहीं लगा सकते हम, अगर हम लिख रहे हैं माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, सो वी कैन नॉट ऑब्वियसली राइट माइनस ऑन द राइट साइड, सो दिस इज इक्वल टू 2.303, R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम 8.314 लेंगे। टेम्परेचर 290, अगेन नहीं गिवन है, 298 स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्योंकि पता ही है हमें log KC, यहां से जब आप निकालेंगे तो KC आएगा, या मैं ऐसे करूं अगर, तो ये आएगा log KC इज इक्वल टू 0.5076 समथिंग समथिंग,
तो यहाँ से आपका जो आएगा Kc आएगा, that will be anti-log of this above value which is 0.5076 and ये आएगा equal to 3.217, right? So this is न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 एग्जैक्टली सिमिलर है। इसके लिए ओके यहाँ पे ये मैंने कुछ मिस कर दिया है, इसमें आपको डेल्टा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जो मैंने यहाँ पे ऊपर जी लिखा है इसमें आपको बेसिकली डेल्टा जी नॉट निकालना है। जस्ट अ सेकेंड, 6 न्यूमेरिकल, यस ये जो है ना ये वैल्यू, दिस इज आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है, ये मिस हो गया यहाँ से। डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग सेल, हाउ इज इट रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे मैंने पिछला किया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर यू। आपको यहाँ पे डेल्टा जी नॉट निकालना है और के सी की वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्टली इन द सेम वे एज वी डिड इन न्यूमेरिकल नंबर 5। कैलकुलेट द cell EMF and delta G for the cell reaction at 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी सिमिलर है। इसमें आपको क्या करना है, लेकिन आपको सेल EMF निकालनी है एंड डेल्टा G फॉर द रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे आपको ई सेल निकालनी है, ई नॉट सेल नहीं निकालनी है, ई सेल निकालनी है। अगर आप देखें आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है एंड आपको डेल्टा जी निकालना है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू, या डिक्रीज इन दिस इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। तो आपको पहले ई सेल निकालनी पड़ेगी एंड ई सेल निकालने का क्या तरीका होता है, ई सेल कैलकुलेट करने का वे होता है, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 0.0591 जो हमने नर्स्ट इक्वेशन करी थी, लॉग जो हुआ है ऑक्सीडाइज जिंक और जो नीचे हुआ है रिड्यूस उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। तो सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। सो कैडमियम का है, ये दोनों है रिडक्शन पोटेंशियल, तो -0.403 माइनस -0.763, दिस इज इक्वल टू 0.36 वोल्ट्स। तो यहाँ से आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ तो आ गया, उसको यहाँ पुट कीजिए 0.36 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंकाइन 0.0004 अपॉन 0.2, तो ये आ जाएगा 0.36 माइनस 0.2955 एंड इट विल बी इक्वल टू लॉग 2 इंटू 10⁻⁻3। ये सारा एक्सप्रेशन सॉल्व करके आ जाएगा 0.439 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.44। तो ई सेल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी, तो दैट इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, एन इज 2, दिस इज 9, एफ की वैल्यू है 96500, ई सेल हमारा आया है 0.44, राइट। सो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 84920 joules और it can be written as 84.92 किलो joules। सो आपका डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी आ गया 84.92 किलो joules। ठीक है, चलिए 8 फॉर द इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, डेल्टा जी नॉट गिवन है, कैलकुलेट लॉग के सी। नो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी, आपको ये निकालना है, आपको ये गिवन है -474.78 इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298, यहाँ से लॉग कैसे नहीं निकाल सकते,
वेरी इजी, यहाँ से आपका जो है log Kc वो आ जाएगा 8.32। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। The EMF of the reaction is 0.89. Calculate delta G naught for the reaction. देखो इसमें तो स्ट्रेट अवे आपको स्टैंडर्ड EMF दी हुई है, आपको सिर्फ इसमें जो पता लगाना है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, यानी कि n कितना है। तो n के लिए समझ लेते हैं, जो SN4 है स्टेनिक है, वो चेंज हुआ SN इसमें, यानी कि इसकी हो रही है रिडक्शन। तो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, 2, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई, 3, तो यानी कि 6। मैं फिर से कर लिख देती हूँ उसको, जस्ट अ सेकेंड। SN4 प्लस चेंज टू, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होके इट चेंज टू स्टेनिक, सॉरी स्टेनस। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस बिकम्स 3SN4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 3SN2 प्लस। अब यहाँ से तो आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्रोमियम का देखते हैं, क्रोमियम की हुई है ऑक्सीडेशन, तो इसके निकले हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से मल्टीप्लाई किया इट मेक्स इट 2 क्रोमियम 2 Cr3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो यस, n की वैल्यू इज 6। सो delta G naught is equal to 6, sorry, OMG, where have he, okay, yes, so delta G naught is equal to minus n is 6, f is 96500, E naught हमें गिवन है 0.89, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके -515,310 जॉल्स, विच इज इक्वल टू -515.31 किलो जॉल। सो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने निकाल। 10th न्यूमेरिकल मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये भी सिमिलर है जैसे हम पिछला करते आए हैं अब तक, कि इसमें मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, यानी कि आपको डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, ये निकालना है, जो कि आप निकाल सकते हैं NF E0 सेल से। लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द गिल्वेनिक सेल। अभी बता दूं, पहली तो बात है यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नहीं निकालनी। अगर हमें यहाँ पे ये बोल रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन, हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो इसका मतलब हमें डेल्टा जी निकालना है, जैसे मैंने पहले किया था। तो बेसिकली आपको पहले ई सेल निकालना है, विच इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग जिसकी हुई है ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन, ओवर जिसकी हुई है रिडक्शन, यानी कि सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन, एंड रेज टू पावर 2 आएगा। ये वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि हम इक्वेशन अगर लिखें तो ये बनेगी कॉपर प्लस 2 सिल्वर आयन गिव्स यू कॉपर आयन प्लस दिस। तो ये बनेगा आपका। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे इसके लिए, सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें OMG, सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें E0 सेल, ऐसा न्यूमेरिकल मैं कर चुकी हूँ, विच विल बी इक्वल टू, ओके पहले तो देखो दिया क्या हुआ है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका दिया है। सो यहाँ पे इसका तो दिया है जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिल्वर टू सिल्वर आयन चाहिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन जो ये दिया है ये हमें दिया है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको प्लस कर दो, प्लस 0.80, इट बिकम्स रिडक्शन पोटेंशियल। तो 0.80 माइनस 0.34, दिस इज इक्वल टू 0.46। बस अब तो आपको ई सेल निकालनी है, दिस इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.130,
सिल्वर आयन की है 1 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, ये पूरा आपका आएगा सॉल्व करके 0.249 विच इज इक्वल टू 0.25 अप्रोक्सीमेटली। आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी विच इज इक्वल टू -NFE सेल। N की वैल्यू है 2, F है 96500, सेल की EMF आई 0.25, तो ये वैल्यू आ जाएगी -48.250 जूल्स और -48.25 किलो जूल। ये पर मोल होती है, याद रखना। सो दिस इज पर मोल। सो दिस वाज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप, जिसमें हम डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी या गिब्स एनर्जी चेंज निकालते हैं या मैक्सिमम वर्क डन बाय दी सेल निकालते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल।